Hello everyone, my name is Gargi Sharma and today I'll be taking current affairs integrated with economics. Before starting the session, I would like to briefly introduce myself. I have been a part of this journey. Now I'm preparing and I'm pursuing PhD in economics. Alright, so now we'll be talking about, firstly, we'll be talking about the market hoax that is being sold in the market about economics. That economics is a very difficult subject. It's very hard to tackle when it comes to UPSC. First of all, we need to be very clear about the fact that we are not going for Indian economical services or we are not going for PhD. UPSC, when it comes to economics, deals majorly with the macroeconomic area, which is not very difficult to tackle, but it's easier said than done. We need to be clear about what to study and what not to study. First things first, I'd like to tell you that no matter how many PTs are there in the market, how many times or how many books you read, you need to be very familiar with the basic terminologies of economics like inflation, deflation, stagflation. You need to know them irrespective of anything. And how will you be familiar with them? Read newspapers very religiously. Now, when you read your newspaper very religiously, you will encounter some words which are coming over and over again. For example, let's take an example deficit. No matter if you know about deficit, but you have a slight confusion, गूगल पे जाइए डेफिसिट टाइप करिए डेफिनेशन पढ़िए ठीक है if you are clear about it well and good now when you will read newspapers regularly you will realize कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो काफ़ी सारी आती हैं और आप जब उन्हें गूगल करेंगे तो आप पहले उन्हें समझना शुरू करेंगे दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ इकोनॉमिक्स ये बेस है ठीक है क्योंकि जब तक टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं होंगी तब तक आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे दिस इज़ वेरी सिंपल और अगर आपने बेसिक टर्मिनोलॉजीज कर ली फॉर एग्जाम्पल टेक इन्फ्लेशन अब इन्फ्लेशन क्या होता है इन्फ्लेशन होता है जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज इन द मार्केट ठीक है अब इसका फिनोमिनन क्या होता है मार्केट में क्या होता है कि लिक्विडिटी होती है ठीक है लोगों के हाथ में पैसा होता है अब जो गुड्स है मार्केट में वो तो लिमिटेड है उन गुड्स के लिए आपका कंपटीशन बढ़ जाता है और उन गुड्स का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है ठीक है अब आपको ये फिनोमिनन जो है आप इस फिनोमिनन से फेमिलियर हो गए ठीक है उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई भी अप्लाइड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है और उसमें ये होता है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई या गवर्नमेंट सजेस्ट करती है कि आप मार्केट में और लिक्विडिटी जो है वो इन्फ्यूज कर दो या फिर आप जो है रेपो रेट घटा दो ठीक है तो ये चीज़ क्या होगी गलत हो जाएगी दिस इज द रीजन वाई इज इट सेड कि टर्मिनोलॉजीज फॉर्म द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक्स उन्हें करिए और उन्हें करने का मैंने तरीका बताया क्या करना है आपको न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना है ठीक है इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यू हैव टू रीड योर न्यूज़पेपर एंड irrespective of how deep your knowledge is about the subject you need to go on Google you need to type the word and you need to jot down the definition okay I'll take up queries but let me just start with the session go it midway and then when you feel that it's the right time that we should talk and converse about it we'll take it further right तो फिनोमिनन जो है टर्मिनोलॉजीज के पीछे वो समझने भी बहुत ज़रूरी होते हैं अब एक चीज़ ये है कि 2016 तक अप्लाइड इकोनॉमिक्स के इतने क्वेश्चन नहीं आते थे सिंपली आ जाते थे कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है इन्फ्लेशन क्या होता है ऑल्दो दो तीन तब भी होते थे बट अब ये दो तीन भी नहीं रह गए हैं major questions are asked from the current affairs part of economics as well as the applied economics ठीक है applied economics के लिए आपकी core economy जो है वो inevitable है तो सबसे पहले हम core economy क्लियर करेंगे और core economy के लिए हमें कोई 700-800 पन्नों की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ट्रस्ट मी बेसिक टर्मिनोलॉजीज करिए न्यूज़पेपर रोज पढ़िए कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करिए कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करने में आपको 2 से ढाई 3 महीना 4 महीना बेस्ड ऑन आपका जो पर्सनल लेवल है वो लग जाएगा
but that is the way to tackle economics. That is the sole way if you want to tackle economics in a way which doesn't seem complex. All right. If you keep running behind the books that are in the market, you won't be able to understand the subject and you will think that it is very difficult. Now, there are two type of questions, actually three type of questions we'll take, which comes in UPSC prelims as well as mains. एक होते हैं पूरे आपके स्टैटिक जो होते हैं, ठीक है, जिनकी जो वॉल्यूम थी, जिनकी जो संख्या थी, वो 2016 तक काफ़ी ज़्यादा थी. उसके बाद आए आपके अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जिसकी आज भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है. तीसरे आते हैं आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है. करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट ओनली, but you need to be very much in touch with the current affairs to answer them. We'll see in the previous year question paper when we'll be discussing about it. Okay, अब हम अगर मेंस की बात करें, प्रीलिम्स हम अभी देखेंगे, अगर हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस में क्या होता है. एक होता है फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन का, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर एक बेसिक क्वेश्चन आता है टैक्स पे, तो आपको पता है टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है. तो वो आपका स्टैटिक से डिराइव हो गया. बट अब एक क्वेश्चन आया कि डिजिटल टैक्स क्या है, OECD का फोर्थ पिलर क्या है, डिजिटल टैक्स का जो आपका मोटिव है, जो आपका एम है, वो क्या है, ठीक है. सो दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट बॉल गेम. इस वजह से करंट अफेयर्स की बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. क्योंकि अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं होगी करंट अफेयर्स की, तो आप मेंस में उस इशू को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सो विद दिस आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि सबसे पहले तो आप ये चीज़ निकाल दीजिए कि इकोनॉमिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत टफ है. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप 700 पन्नों की 2-3 बुक्स पढ़ेंगे तो बेशक बिल्कुल टफ है. आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में 100 पेजों से ज़्यादा का फॉर्डर नहीं चाहिए, गिवन दैट यू आर रीडिंग योर न्यूज़पेपर जुडिशियसली एज वेल एज रिलीजियसली, ठीक है. न्यूज़पेपर मिस नहीं करना है. कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसे बार बार गूगल करिए अगर आपके पास कोई नहीं है समझाने के लिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम रेवेन्यू डेफिसिट का एग्जाम्पल लेते हैं. रेवेन्यू डेफिसिट आपको नहीं समझ में आ रहा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, आप जाइए गूगल पे, आप टाइप करिए. आपको फिर भी नहीं समझ में आई, ब्रेक इट इनटू पार्ट्स. रेवेन्यू को क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, ठीक है. फिर उसे साथ में मिलाइए. फिर भी समझ नहीं आया तो और क्लैरिटी लीजिए कि रेवेन्यू जो है प्रॉफिट से कैसे डिफरेंशिएट होता है, रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है, प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है. ऐसे करते करते यू विल डिराइव एट अ पॉइंट वेयर आप कॉज एंड इफेक्ट भी सीख जाएंगे और क्वेरी करके चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका भी सीख जाएंगे, ठीक है. अब क्या होता है कि हम लोग ब्रॉडर एस्पेक्ट पे तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दी अ लिटिल नैरो डाउन एस्पेक्ट हम आंसर नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है. ग्रोथ क्या है और इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है. ग्रोथ में आप अलग चीज़ें एडजस्ट करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ में आप अलग चीज़ें एड्रेस करेंगे, ठीक है. तो ये चीज़ जो है ये पता होनी बहुत ज़रूरी है. और ये पता कैसे लगती है, ये पता लगती है हमें यूपीएससी के सिलेबस के थ्रू. यूपीएससी का सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं इकोनॉमी को एड्रेस कर रही हूँ, इकोनॉमी इज़ माई सब्जेक्ट. इस वजह से माई साइड विल बी हेविली इंक्लाइन टूवर्ड्स इकोनॉमिक्स. अगर आप पिछले साल के मेंस के क्वेश्चन उठाएंगे तो अभी तक यूपीएससी माइक्रो लेवल में नहीं गया है व्हेन इट कम्स टू मेंस. Even in the prelims, it has not been to the micro level, except 1-2 question occasionally, like one was asked in 2020. 2019 was a decent paper. 2023 being an exception. We all are waiting for the answer keys. But अगर 15 question prelims में आ रहे हैं, तो at least 11-12 of them are doable, and we need to do them in order to get selected, because UPSC is an indispensable part of our प्रिपरेशन एंड द जर्नी. सबसे पहली चीज जो आती है वो ये आती है कि हम कैसे इंटीग्रेट करें आपके स्टैटिक को एज वेल एज करंट अफेयर्स को, ठीक है. तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लें पीडीएस का, हम आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हियर राइट नाउ, क्योंकि आई फील पर्सनली आई एम एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स जब एग्जाम्पल का रेफरेंस दिया जाए, ठीक है.
पीडीएस टोटली इट्स पीडीएस सब्सिडीज, ये सब जो है आपका स्टैटिक पोर्शन कवर होता है, ठीक है, ये पूरा स्टैटिक है। लेकिन देयर हैव बीन सेवरल initiatives by the government to improve the efficiency of PDS, to make it widely available to each and every person in the society, right? तो एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ, इंक्लूसिव अवेलेबिलिटी की तरफ, डिजिटलाइजेशन इंट्रोड्यूस करा गया है पीडीएस में, वन नेशन वन कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई है। क्यों? जिससे आप किसी भी पार्ट में हो इंडिया के, तो आप अपने राशन कार्ड के थ्रू वहां से अपने फूड ग्रेन जो है वो प्रोक्यूर कर सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। पहले क्या होता था, आप जिस स्टेट में हैं आपको वहीं से मिलेंगे, अब ये प्रोविजन धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। सो दिस इज अ रिमार्केबल स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ, irrespective of where you are living, irrespective of your economical condition, irrespective of your economic situation, you are being given the benefit of being an indispensable part of the society. All right, now we'll start with the UPSC syllabus first and we'll be taking exclusively the economics part. अब अगर आप यहाँ पे की टर्मिनोलॉजीज लेंगे और आप प्रीवियस ईयर कोई भी, आप प्रीवियस ईयर का कोई भी 2022 का, 2021 का, 19 का, 20 का, आप यूपीएससी मेंस का जब क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो मेजर जो आपकी की टर्मिनोलॉजीज हैं, क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने माइक्रो पार्ट से पूछ लिया गया है, ठीक है, मैक्रो पार्ट से ही पूछा गया है। जैसे पीडीएस की एफिशिएंसी बताओ, ठीक है, सब्सिडीज क्या हैं, सब्सिडीज में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, सब्सिडीज को और एफिशिएंट करने के लिए क्या इनिशिएटिव लाए गए हैं। क्वेश्चंस हैव बीन वेरी स्ट्रेट, एक दो को छोड़ के, बट दे हैव बीन वेरी डायरेक्ट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy, infrastructure। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहा है दिस अप्लाइज टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे हम बस इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बात करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे दिया गया है एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, राइट। अब अगर हम इसके अंदर इस चीज़ को एड्रेस करें तो एनर्जी सेक्टर में कितने आपके वो हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, कितने इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे हैं, कितने सोलर पार्क्स आए हैं, कितना फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है, ईवी इंट्रोड्यूस करी गई है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी जो आपका पार्ट है सिलेबस का वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही आया है आपका पोर्ट्स, रोडवेज के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा है भारतमाला स्कीम, ऑलराइट। पोर्ट्स के लिए है सागरमाला, एयरपोर्ट्स के लिए उड़ान टू इंक्रीज द रीजनल इंक्लूसिवनेस फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट। ऐसे ही रेलवेज के लिए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जिससे कि आपके जो लॉजिस्टिक्स हैं उनका एफिशिएंट ट्रांसफ़र हो सके, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो आपके सब पार्ट्स होते हैं सिलेबस के, ये काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट सीम्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट। तो जब आप अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखते हैं, आप उसे पहले तो या तो अपने टैब में या फिर अपने पेन पेपर में, मेरे हिसाब से तो राइटिंग स्टिल इज़ द बेस्ट। आप हर एक पार्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको एक पेज पे लिख लीजिए, ठीक है, और उसके अंडर सब पार्ट्स बना के एड्रेस कर दीजिए कि गवर्नमेंट के रिसेंट क्या इनिशिएटिव हैं, क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं इस पार्ट में। जैसे कि अभी मैंने आपको माइक्रो लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट में दिखाया था, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट बजटिंग आ गया, गवर्नमेंट बजटिंग क्या होती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। आप गवर्नमेंट
बजटिंग में भी एक पार्ट आया है कि भाई गवर्नमेंट बजटिंग में वुमेन के लिए भी फेमिनाइजेशन ऑफ बजटिंग, ठीक है। तो वो भी आप एड्रेस कर सकते हैं अपने उस पेज में डाल के, जिससे क्या होगा कि जब आप मेंस के लिए रिवाइज कर रहे होंगे, इनफैक्ट जब आप प्रीलिम्स के लिए रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे पढ़ना है, एंड दिस इज हाउ योर यूपीएससी प्रिपरेशन बिकम्स एफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, अब जैसे मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम। अब ये टॉपिक जो हुआ हमारा, ये हेविली जो है वो स्टैटिक डिराइव्ड है, ठीक है। इसमें जो आपकी करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन है वो एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स थोड़ा सा कम होगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत कम होगा, ठीक है। जैसे आप इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन, ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। अब जैसे आपने फर्टिगेशन लिखा, ठीक है, आपने फर्टिगेशन को एड्रेस करा इरिगेशन में। अब फर्टिलाइजेशन, यू विल मूव टूवर्ड्स फर्टिलाइजर्स, उसके बाद यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स, अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स, ये वो, ठीक है। तो उसको आप माइक्रो पार्ट में डिवाइड करते हुए चलिए, और उसमें एक एक लाइन का एड्रेस कर दीजिए, या गवर्नमेंट का अगर कोई इनिशिएटिव है तो उसे सब मार्क करके लिख दीजिए, और उसे रेगुलरली रिवाइज करिए 14 डेज में, 20 डेज में, टू मेक इट मोर एफिशिएंट कि आपको चीज़ें याद रहें। ऐसे ही चलिए, ये तो आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट द कोर इकोनॉमिक टर्मोलॉजीज, इन्फ्लेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए, यूपीएससी ये एक्सपेक्ट नहीं करता प्रीलिम्स में कि आपको ये पता हो कि यहाँ पे उतना इन्फ्लेशन है, वहाँ पे उतना इन्फ्लेशन है, बट मेंस में क्या होता है कि क्योंकि आपका GS1 जो है वो हेविली स्टैटिक डिराइव्ड होता है, तो सब बच्चों के ऑलमोस्ट जो पढ़ के गए हैं उनके ऑलमोस्ट 2, 3, 4, 5 मार्क्स ऊपर नीचे बराबर होते हैं। जो की डिफरेंस पड़ता है वो पड़ता है GS पेपर 2 और GS पेपर 3 में। GS पेपर 4 इज अगेन अ गेम चेंजर, बट वो होता है कि एक एक मार्क्स की लड़ाई है, ठीक है। तो अब इन्फ्लेशन के बारे में कि इट इज़ अ जनरल राइज इन प्राइसेस, इसका ये फिनोमिनन होता है, ये तो सब लिख के आएंगे। जो यूपीएससी मेंस में पहुंचा है उसे ये चीज़ तो पता होगी ना, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, टू टेक एन एज कि करंट इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है मार्केट में, कितना चल रहा है, ठीक है, और इसका कितना स्पाइक हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, और इसे कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, या इट इज़ ऑलरेडी अंडर कंट्रोल, या गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए। अब एक चीज़, जब सजेस्टिव मेजर्स आते हैं हमारे यूपीएससी में, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये बहुत ही जनरल सजेस्टिव मेजर्स लिखते हैं। ट्राई टू माइक्रो एनालाइज इट, ठीक है, ट्राई टू इंटीग्रेट गवर्नमेंट स्कीम्स, ट्राई टू बी वेरी इनोवेटिव with your suggestions. This is one way of getting an edge in GS3. All right, now this is issues related to direct and indirect farm subsidies and MSP, PDS, objective of PDS, functioning limitations. Now this agriculture portion, no matter how many times this question from this portion have been repeated, it remains one of the most important key area, which is agriculture part of economics, ठीक है। तो इसमें जितने भी डेवलपमेंट हैं, जितने भी डेटा एंड स्टैट्स हैं, वो आप 2 से 3 पेपर में रख के लिख लीजिए, जो लेटेस्ट डाटा होगा, और वो वहाँ जाके आपको प्रोड्यूस करके आना है। अब दिक्कत ये होती है, हम क्या करते हैं, हम PTs पे जाते हैं, हम मैगजीन्स पे जाते हैं, हम इस पे जाते हैं, हम उस पे जाते हैं, और फिर हमको रियलाइज होता है कि वहाँ जाके तो हमें कुछ याद ही नहीं रहा। सो दिस इज़ वन ड्रॉबैक व्हेन इट कम्स टू दिस सब्जेक्ट, दिस इज़ नॉट पॉलिटी, राइट। आपको अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, रोज़ आप बेसिक चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तो आप बेसिकली आंसर कर पाएंगे। बट द थिंग इज कि अगर आप डेटा और स्टैट्स नहीं डाल रहे हैं, तो दे माइट बी समवन आउट देयर हु इज पुटिंग इट इन, एंड ही और शी विल हैव एन एज ओवर यू। तो हमें एज नहीं देनी है, वी नीड टू बी द एजी वन, राइट। हम आगे चलेंगे। आपका इकोनॉमी में आंसर एनरिचमेंट कैसे होता है, लेटेस्ट डेटा, स्टैट्स, रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स, ये सब इंट्रोड्यूस करके, ये सब लिख के, ठीक है। अगर आपने ये सब लिखा है, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो एग्जामिनर होगा उसका ध्यान जाएगा कि हाँ, इस बच्चे ने पढ़ा है,
He knows what is going out there in the market. He knows about the global economy. He knows what is going in the local economy, right? And it is very important to convey. The most important thing in mains is to convey to the examiner कि भाई इसको आता है, ठीक है? Simple definition नहीं लिख के आनी है. And again I would like to say कि ये सब मैक्रो पार्ट पे रहेगा, माइक्रो पे मत जाइए. यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आज जो है यूएस डॉलर कितना चल रहा है, इंडियन रुपी कितना फेयर कर रहा है उसके अगेंस्ट. अभी तो इतने पे नहीं आए हैं हम लोग, ठीक है? इट आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, वेरी बेसिक थिंग्स. सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं. एग्रीकल्चर सब्सिडीज पे क्वेश्चन आए हुए हैं, पीडीएस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, सप्लाई चेन पे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्रीकल्चर में. सो इट्स वेरी वेरी सिंपल. ओके, नेक्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज कि इन सब जो आपके मेजर एरियाज हैं, जैसे कि आपका पीडीएस हुआ, ठीक है, आपका सब्सिडी हुआ, आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हुई, आपके टेक्नोलॉजी मिशन हुए एग्रीकल्चर में, इस पे आपको खुद ही एक क्वेश्चन में आके आंसर बनाने लेना है. और क्वेश्चन कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, what do you mean by food processing industry? What are the advantages? How is India faring in terms of food processing industries? And what are the challenges? और उसके नीचे suggestive measures. तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए एग्जाम में, you will be able to answer the question. ठीक है? अब जैसे कि हम ये पार्ट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स. इन्वेस्टमेंट मॉडल्स एंटायरली स्टैटिक पोर्शन है आपका इकोनॉमी का. आप इसमें करंट अफेयर कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? कोई भी अगर फेमस प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें बीओटी है, ठीक है, उसमें आपका ईपीसी है, इन्वेस्टमेंट मॉडल, आप वो कोट कर देंगे एग्जाम्पल में. सिंपल हो गया. अब जो सबने लिखा आपने उससे एक चीज ज्यादा कर दी, तो एक मार्क्स आप ज्यादा ले लो. यहाँ पे मिल गई आपको एज, ठीक है? नाउ आई थिंक सिलेबस वाला पार्ट तो मैंने कवर कर दिया है. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क एंड देन वी कैन मूव फर्दर. देखिए, मैं अभी बस इकोनॉमी का करंट पार्ट ले रही हूँ. इकोनॉमी का स्टैटिक आपके दूसरे टीचर लेंगे. आई विल बी टेकिंग द करंट एज फॉर नाउ. एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज, so that we can move to the next part. Okay, so handouts will be given. Okay, so the question Anup has asked is, do we need to do any comparative analysis in spike, downfall of index, report or data? देखिए, एनालिसिस की जरूरत नहीं है. लेटेस्ट डेटा अगर आप प्रोड्यूस कर देंगे तो इट विल बी वेल एंड गुड. बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि अगर आप कंपेयर करके दिखा सकें as per the demand of the question. For example, I'll give you an example for this as well. 2018 में वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करी थी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 44, राइट? रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने दोबारा से रिलीज करी है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 36. तो अगर आप ये इंप्रूवमेंट दिखा देंगे अपने आंसर में, तो नॉर्मल सी चीज है कि आपको एज मिलेगी, ठीक है? बट how much is it humanly possible to remember all the data and stats?
ठीक है, एक सिर्फ लॉजिस्टिक पॉलिसी पे तो क्वेश्चन आना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, इट सेज दैट इंडिया इज अ हाईली मतलब इनइक्वल कंट्री. इंडिया इज अ हाईली इनइक्वल कंट्री. टॉप इतने परसेंट होल्ड इतना इतनी वेल्थ एंड इतने परसेंट होल्ड इतनी वेल्थ. ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए. लेकिन ऑक्सफैम ने उससे पिछली रिपोर्ट में क्या लिखा था ये याद करना भी तो एक टास्क है. ठीक है, सो डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू. लेटेस्ट डेटा लेटेस्ट स्टैट्स तक लिमिटेड रहिए. अगर इन केस याद रहता है, जैसे मुझे याद रहा कि लॉजिस्टिक पॉलिसी का ये है या इसका ये है उसका वो है, स्पेशली इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, तो कोट कर दीजिए. वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पुराना बैगेज लेके चलना है कि उस साल में उतना था इस साल में इतना है तो हमें दिखाना ही दिखाना है. बट या लेटेस्ट डेटा व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स इज अ मस्ट. ओके, इज इट क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन? All right, let's move further. Let's take some PYQs. All right. All right. Okay. Now, with PYQs, we'll be looking at how to tackle question related to current affairs. अब देखिए इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है. बहुत सिंपल सी चीज़ है. फॉर क्वेश्चंस लाइक दिस, रैपिड फाइनेंसिंग एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, ये 2021 में एक क्वेश्चन था. ठीक, अब 2022 में था ये क्वेश्चन. हाँ, so 2022 में this question was asked. This was widely circulated in the paper 2 to 3 times. तो अगर आपने पढ़ा होता आपको पता होता, आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं पता होगा. ठीक है, तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि कुछ भी हो जाए न्यूज़पेपर तो हमें नहीं छोड़ना है. ठीक है, और माइक्रो में जाना नहीं है कि आप मैगजीन उठाएंगे और लास्ट के 2 महीने में पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि आपको सब आ गया है. इकोनॉमी में ऐसे नहीं आता है. इकोनॉमी नीड्स अ बिट ऑफ लेबर, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, यहाँ पे रटन विद्या नहीं चलती है, रोट मेमोरी नहीं चलती है. यू नीड टू अप्लाई लॉजिक, यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन, स्पेशली इन अ कंडीशन जहाँ आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हो. ठीक है, एंड नाउ questions which are related to economics are mostly applied until unless they are direct from the current affairs. ठीक है, total static भी आते हैं. We have taken an amalgamation of the 3 of them, but let's see. Now, question number 1 says rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provision of lending by which of the following. Now, as I said, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है. ये 4 आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके बारे में आपने पता होगा. अगर आप डिलिजेंटली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये 4 इंस्टीट्यूशन है आपके: एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक. अब एक चीज़ ऐसे सोचिए कि आप एग्जाम हॉल में गए और आपका कोई आइडिया नहीं है. ठीक है, तो जब आपको आइडिया नहीं है तो इसमें आप क्या लॉजिक लगाएंगे? लॉजिक नहीं लगता है. या तो ये है कि आपका सही ही हो जाए तुक्का पढ़ के, ठीक है, बट कितने को तुक्के मारेंगे. इसी रीजन की वजह से कहते हैं दैट करंट अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इकोनॉमी प्रिपरेशन इन यूपीएससी. आज से ही अपने न्यूज़पेपर उठाइए, कोई सा भी उठा लीजिए, उसे पढ़िए. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें ऐसा कोई वर्ड आया रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड आया, आप उसे एक बार गूगल पे टाइप करेंगे. अगर वहाँ पे मेंशन है या नहीं है, बट न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होता है कि मेंशन नहीं होता है. उसमें होता है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी गिवन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड has lent this much rupee to this nation to bail out because of the economic crisis it's been going through. But in case अगर नहीं भी है तो आप क्या करेंगे? आप टाइप करेंगे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट अपने गूगल पे, ठीक है. आपको विकिपीडिया पे अंदर भी नहीं जाना पड़ेगा, ऊपर ही दिख जाएगा
कि this rapid financing instrument or rapid credit facility it is being given by IMF, ठीक है, it is being given by IMF, which is a financial assistance to low income countries which are facing an urgent balance of payment need. ओके, अब ये कंसेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस है. अगर क्वेश्चन में ये होता कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो है एक कंसेशनल फाइनेंसिंग असिस्टेंस है या नहीं, ठीक है, और आपको नहीं पता होता कि इट इज अ कंसेशनल फाइनेंसिंग असिस्टेंस, तो आप कैसे आंसर करते हैं? ठीक है, अगेन दिस रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स. और ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना लिया है हमने. ठीक है, नाउ ये हो गया, इसका आंसर था बी. नाउ आई वुड अप्रिशिएट इफ यू पीपल आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 says with reference to the Indian economy consider the following statements. अब यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन है इन्फ्लेशन पे. ठीक है, बिल्कुल कोर रीजन है इकोनॉमी का. ठीक है, सिलेबस में भी है, हर जगह है, मतलब जहाँ पे इकोनॉमी आता है वहाँ पे इन्फ्लेशन सबसे पहला वर्ड होता है. ठीक है, तो इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर महंगाई बहुत ज्यादा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब ये हो गया आपका अप्लाइड पार्ट. यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर मार्केट में महंगाई ज्यादा है तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा. अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई खरीदेगा तो पैसों में खरीदेगा. वो पैसा कहाँ आया? मार्केट में. मार्केट में आया, मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बढ़ गया, महंगाई और ऊपर चली गई. तो ये आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, आप ऐसे लॉजिक लगाते हैं जब आपको चीजों के बारे में पता होता है. जब आपको पता है कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन है महंगाई. ठीक है, अब क्या होगा, वो कह रहा है कि इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत ज्यादा है और सरकार जो है क्या कहते हैं ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी. तो सीधी सी चीज है कि जब आप कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, तो आप उसको खरीदने के लिए पैसा देते हैं. अब आरबीआई के गवर्नमेंट के केस में वो पैसा कहाँ जाता है? पैसा जाता है मार्केट में. ठीक है, अब वो मार्केट में गया, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी तो महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि लोग के हाथ में पैसा आया और जो लिमिटेड गुड्स हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया. ठीक है, नाउ स्टेटमेंट नंबर, अब इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि आप एलिमिनेशन भी चूज कर सकते हैं. 1 काटा, ए कटा, सी कटा और डी कटा. बट आई वुड सजेस्ट कि एलिमिनेशन पे ना जाए, क्योंकि यूपीएससी फेज आउट कर रहा है आपका एलिमिनेशन का. जितने भी आपके रूल्स हैं, सब कुछ है, वो सब निकाल रहा है. तो एलिमिनेशन आई वुड से नाउ इज नॉट अ फेयर डील. अब कुछ नहीं बन रहा है तो करना पड़ता है, बट अप्लाई लॉजिक बिफोर आंसरिंग. We'll still go further. Statement number 2 says, if the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. ये स्टेटमेंट सही है. ये स्टेटमेंट सही क्यों है? यहाँ पे ये कह रहा है कि रुपी जो है डेप्रिसिएट हो रहा है. अब डेप्रिसिएट हो रहा है रैपिडली, तो उसको आपको हार्मोनाइज करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई मार्केट में डॉलर सेल करेगा. डॉलर सेल करेगा तो रुपी जो है, रुपी का डेप्रिसिएशन जो है वो हल्का हो जाएगा. यूएस डॉलर इज लिंक्ड टू ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएस और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल. अब अच्छा एक बात बताइए कि अगर इंटरेस्ट रेट कहीं पे कम है, ठीक है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? आप वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे. जब आपको मूल पे ब्याज ज्यादा मिलता है तब फायदा होता है. ये इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल है. अब वो कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट यूएस में और यूरोपियन यूनियन में, मतलब वर्ल्ड के 2 मेजर इकोनॉमिक जोन्स में, वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स. क्या आरबीआई ऐसे में डॉलर बाय करेगा? इन्वेस्ट नहीं, बाय करेगा, खरीदेगा. यस. क्यों? कभी तो एप्रिसिएट होगा. ठीक है, और अगर इन केस नहीं भी होता है तो आपकी यूरो
और आपका यूएस डॉलर, दीज कॉन्स्टिट्यूट मेजर बास्केट्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हमने सस्ते इंटरेस्ट रेट में, कम इंटरेस्ट रेट में खरीदा, ठीक है, अब हमें ऐसा हुआ, हम पे ये सिचुएशन आई, इन दोनों स्टेटमेंट को इंटरलिंक करिए, ठीक है, कि आपका रुपी जो है रैपिडली डिप्रिसिएट कर रहा है मार्केट में, तो क्या करेगा इंडिया? इंडिया जो है डॉलर और यूरो को बेच देगा रुपी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है कि जब इंटरेस्ट, अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे खरीद रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज है कि आपका नुकसान है। आप कब लोन लेते हैं? आप बैंक से लोन कब लेते हैं? जब इंटरेस्ट रेट कम होता है। ठीक है, कभी देखा है किसी ने कहा हो कि यार ईएमआई पे फोन लेना है, तो सर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, राइट? तो इंटरेस्ट कम लग रहा है, नो कॉस्ट ईएमआई है, तो बात ही क्या है, राइट? ऐसे ही ये आपका मैकेनिज्म चलता है। इसका आंसर है 2 and 3 बी ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, with reference to the G20 common framework, consider the following statement। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड विथ करंट अफेयर्स। ठीक है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट स्टिल देखिए, और सबसे बड़ी चीज क्या है, लोग कहते हैं कि जितना छोटा क्वेश्चन हो उतना बेटर है। इकोनॉमी में जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ज्यादा डुएबल होता है, जितना छोटा क्वेश्चन होता है उतना खतरनाक होता है, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें एलिमिनेट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, छोटे क्वेश्चंस में एलिमिनेट करने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं, until unless you have a microscopic brain। ठीक है, तो G20 कॉमन फ्रेमवर्क ये कहता है, इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। अब अगर आपको पता नहीं है पेरिस क्लब के बारे में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप ये बताइए, आप कैसे आंसर करेंगे? पहले तो आप यही सोचते रहेंगे कि पेरिस क्लब होता क्या है। अभी के लिए मैं बता देती हूँ, पेरिस क्लब इज इट्स एन अनऑफिशियल यूनियन ऑफ 22 कंट्रीज, और ये क्रेडिटर कंट्री हैं जो बेसिकली डेब्ट रिडन जो कंट्रीज होती हैं उनको पैसा देती हैं टू मूव आउट ऑफ द क्राइसिस। ठीक है, 22 कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट इसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, नाउ इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विथ अनसस्टेनेबल डेब्ट। जिन पे बहुत ज्यादा डेब्ट होता है, उन्हें उस डेब्ट से निकालने के लिए लो इंटरेस्ट पे दीज कंट्रीज मूव इन टू हेल्प देम, और उस क्लब का नाम क्या है? पेरिस क्लब। नाउ थिंक अबाउट इट योरसेल्फ कि अगर आपको नहीं पता होता कि पेरिस क्लब क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते? ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड न्यूज़पेपर। आई विल स्टेट दिस वंस अगेन। ओके, नाउ question number 4, which one of the following situations best reflect indirect transfers often talked about in media recently with reference to India? Now here it says recently, which means that this question, this particular phase indirect transfer was in news, right? अब इसका सही आंसर जो है वो डी होगा। A foreign company transfers shares and such share derive their substantial value from assets which are located in India। ठीक है, ये चीज बहुत फेमस थी कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं या कंपनीज क्या कर रही हैं कि वो अपना बेस तो कहीं और बना लेती हैं, लेकिन उनका जो मेजर प्रॉफिट डिराइव हो रहा है वो इंडिया से हो रहा है। ठीक है, उस वक्त इनडायरेक्ट ट्रांसफर टर्म जो है ये बहुत बहुत न्यूज में आया था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप देखिए, जो क्वेश्चन पूरी तरीके से करंट अफेयर ओरिएंटेड है, उनको आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। स्टैटिक वालों में आप जो है लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, आप फिनोमिनन समझ के चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, बट करंट अफेयर्स इफ यू हैव रेड, इफ यू हैव डन, यू हैव डन, एंड इफ यू हैव नॉट, यू हैव नॉट। ठीक है, तो आई विल जस्ट वंस अगेन रिवाइज कि क्या जरूरी होता है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी प्रिपरेशन इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले क्या करना है? न्यूज़पेपर पढ़ना है,
इकोनॉमिक्स के आर्टिकल अलग चॉक आउट करने हैं, जो मेजर टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, जो मेजर आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं उन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना है, उनको एक पेपर पे लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्फ्लेशन लिख लिया, इन्फ्लेशन के नीचे आप क्या लिख लेंगे, आप लिख लेंगे कि अभी इंडिया का ये इन्फ्लेशन है, पिछले साल इतना था। पिछले साल का नहीं भी लिखना है तो इस साल का तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो कब काम आएगा, वो काम आएगा आपके मेंस के वक्त, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, consider the following statements. Statement number 1 says tight monetary policy of US Fed Reserve would lead to a capital flight. अब देखिए, अगर किसी भी कंट्री की अगर किसी भी कंट्री की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट है, एक तो होती है एक्सपेंशनरी, ठीक है, और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। तो जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट है तब क्या होगा कि वहां से कैपिटल फ्लाइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होंगे, बेनिफिट किसी को दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो लोग जो है अपना पैसा वहां से निकालेंगे और वहां इन्वेस्ट करेंगे जहां पे ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा आपका जहां आपकी जो पॉलिसीज हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, वो रिलैक्स्ड होंगी, ठीक है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में जो आपका सेंट्रल बैंक है वो एक काफी हद तक देखता है कि हम मार्केट में पैसा कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, एंड दे टेंड टू कंट्रोल द मनी in order to attain a fiscal discipline in the economy or in the country. Okay, now statement number 2 says capital flight may increase the interest cost of firms with existing external commercial borrowings. अब ये कह रहा है कि कैपिटल फ्लाइट मतलब कि जो कैपिटल वहां से जा रहा है, इट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ये भी सही है, जब उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो उन पे जितनी भी लाइबिलिटीज है उन्हें वो पे करनी पड़ेंगी, उस पर आपका जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होगा। अब स्टेटमेंट नंबर 3 आपका कहता है डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी इंड्यूस करती है, राइट। तो इसमें आपका आंसर होगा 1 and 2 ओनली, 1 and 2 only. Now let's move to the next question. Okay. Question number 6. Consider the following statements. Statement number 1 says in India, credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India. ठीक है, अब आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है क्या नहीं करता है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। कैन समबडी आंसर मी कि क्रेडिट रेट जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं वो आरबीआई ही रेगुलेट करता है या कोई और एजेंसी रेगुलेट करती है? कैन आई हैव ऑन द स्क्रीन सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? कैन आई हैव द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? Yes, Securities and Exchange Board of India, SEBI. Credit rating agency are regulated by SEBI. Okay, it's a capital market regulator. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका हो गया गलत। अब सिर्फ ये चीज अगर आपको पता हो, अगर आपने करंट अफेयर्स ऊपर ऊपर से भी पढ़े हैं तो भी आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। 1 एलिमिनेट हुआ, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? 1 and 2 नहीं, 2 and 3 इसमें 1 नहीं है, इसे देखेंगे। C 1 है इसमें, ये भी गलत, और D 1 है इसमें, ये भी गलत। तो सही आंसर हुआ अपना B, ठीक है। आप अगर हमें ये दोनों पॉइंट्स ना भी पता हों उसके बाद भी हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। दिस इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप करंट अफेयर्स पढ़ें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. This was a purely current affair based question.
ऑल्दो बहुत मुश्किल है कि ये दोबारा आएगा, और अगर दोबारा आएगा भी तो इसके स्टैट्स बदल चुके होंगे, बट लेट्स हैव अ लुक एट इट कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 says Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world in recent years. अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, वरना ये अनसर्टेन है, इसे हम छोड़ देते हैं. ठीक है. थिंक अबाउट एन आइडियल सिचुएशन कि हम यूपीएससी प्रीलिम्स में बैठे हुए हैं. ठीक है. अब वियतनाम इज लेड बाय अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम. हमको ये भी नहीं पता है, हम ये भी छोड़ देते हैं. Vietnam economic growth is linked to its integration with global supply chains and focus on exports, which is actually true. अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड हैं तो आपको पता होगा ये जो मेजर फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं, जैसे कि आपकी H&M हो गई, ज़ारा हो गई, दे हैव बेस इन कंट्रीज लाइक वियतनाम, बांग्लादेश. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी लेबर कॉस्ट है वो बहुत सस्ती है. ठीक है. तो क्या होता है, लेबर कॉस्ट कट हो गई आपकी सीधे सीधे. ठीक है. तो आपका प्रोडक्शन रेट कम हो गया, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया. सो दिस इज ट्रू, तो दिस इज राइट, तो इसमें हम टिक कर देंगे. अब फॉर अ लॉन्ग टाइम Vietnam's low labor cost and stable exchange rate have attracted global manufacturers, which is again right. ये बात तो हमने अभी अभी करी ही है. Now next is Vietnam has the most productive e-service sector in the Indo-Pacific region. तो अब इसको आंसर करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है. ठीक है. इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है? जो आपकी पैसिफिक कंट्रीज और इंडो, इतना साउथ ईस्ट एशिया, इन सब चीज़ों को कवर करता है, उसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन. चलिए, अब आपको ये पता चल गया, तो आपको पता चल गया कि इस एरिया में कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं. चाइना आती है, जापान आती है, कोरिया आती है, साउथ कोरिया आती है, ताइवान आती है. वियतनाम डज नॉट डील विद द ई सर्विस सेक्टर मेजरली. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत. तो फिफ्थ जिसमें है वो एलिमिनेट कर दीजिए. थर्ड एंड फिफ्थ ये गलत हो गया. थर्ड एंड फोर्थ हमारा सही है, तो थर्ड और फोर्थ आ रहा है हमारा सी में. ठीक है. तो इस तरीके से हमने इसको आंसर कर दिया. 1, 3 एंड 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट. वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन रिसेंट टाइम. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था. ठीक है. 2022 में पूछा गया था. ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था. ठीक है. ये था, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आप लोग देंगे. ऑल्दो आंसर मेंशन्ड है, बट फिर भी. ए है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, बी है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, सी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एंड डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. व्हाट इज द आंसर? आरबीआई इज द आंसर. आरबीआई is responsible for maintaining price stability by controlling inflation in the economy or in the country. All right. Now, question number 9. Consider the following statement. Gujarat has the largest solar park in India. Statement number 2. Kerala has a fully solar powered international airport. And statement number 3. Goa has the largest floating solar photovoltaic project in India. अब इसका बहुत ही सीधा सा है. या तो आपको इन तीनों में से दो पता हो, या तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये तो तीनों पता होने चाहिए. ठीक है. बट आइडियल कंडीशन में तीनों याद नहीं रहते हैं, तो या तो आपको दो पता हो, आपने पढ़ रखा हो. राइट. नाउ इसका आंसर प्योरली जो है वो करंट अफेयर बेस्ड है. आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, आपने सही से रिवाइज करा है, तो होगा. इसका सही आंसर है बी. टू ओनली Kerala has a fully solar powered international airport, which is Cochin International Airport in Kerala. ठीक है. Statement 1 is incorrect. गुजरात के पास नहीं है. भादला सोलार पार्क है आपका थार डेजर्ट में इन राजस्थान, and it is one of the largest in the world as well. It is the largest solar park in the world as well with the capacity it has. Okay. Now
Statement number 3 is also incorrect because Goa, not Goa, it's Telangana which has the largest floating solar photovoltaic project in India. Yeah, Telangana, Ramagundam. It's in Ramagundam, Telangana. It's the largest floating solar photovoltaic project in India. So correct answer is B. Now again, this is a totally current affair derived question. Question number 10. अच्छा, एक reason why I am saying that reading newspaper is an efficient way of tackling current affairs rather than आपका magazines वगैरह, क्यों? क्योंकि magazines वगैरह में क्या होती है कि एक ही जगह बहुत ही integrated knowledge होती है, ठीक है? आपको सब याद रखना है, सब याद रखना है. न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होगा. न्यूज़पेपर में एक दिन में एक ज़्यादा दो ऐसी चीज़ आएंगी जो आपको याद रखनी है. तो नॉलेज जो है वो बहुत ही स्कैटर्ड होती है. तो एक दिन में एक, दो या तीन चीज याद रखना तो बड़ी बात नहीं है ना, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द इफेक्ट ऑफ devaluation of currency is that it necessarily, statement number 1, improves the competitiveness of domestic exports in the foreign markets, increases, second statement number 2 says increases the foreign value of domestic currency. अब देखिए, अगर डिवैल्यूएट हो रही है कोई करेंसी, ठीक है, तो फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो नहीं ही बढ़ेगी. ये तो सीधा सीधा गलत है. नाउ इट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है. अगर आपको पता है डिवैल्यूएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, तो आप सीधा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. इट इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस. नो, डिवैल्यूएशन इट हार्म्स द ट्रेड बैलेंस, क्योंकि आपको उतने सामान के लिए अपनी इकोनॉमी से तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, राइट? तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 आर इनकरेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 1 इज द राइट स्टेटमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following effects of creation of black money. Now this is a purely current affair oriented question. और इसमें एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं आइडियल सिनेरियो में ये सही है, ठीक है. अब ये क्वेश्चन ये देखना चाहता है कि आप अपने आसपास जो हुआ है उससे इन्फॉर्म्ड हैं, फेमिलियर हैं या नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट ये चारों ही सही हैं आइडियल सिचुएशन में. इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ठीक है. ये देख रहा है कि आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप फेमिलियर हैं या नहीं है करंट हैपनिंग से, ठीक है. तो स्टेटमेंट नंबर ए सेज डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग. तो इसका जो आपका रिटर्न रेट होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही होगा आइडियल सिनेरियो में. देखिए, इसका आंसर डी था. 2022 का ये क्वेश्चन है, 21 का है, इसका आंसर डी है, ठीक है. लेकिन अगर आप बाकी भी पॉइंट्स देखेंगे तो वो भी सही है, ठीक है, अगर आप एक आइडियल सिनेरियो में एनालाइज करते हैं तो. इसीलिए करंट अफेयर्स आर इम्पोर्टेंट. ओके. स्टेटमेंट नंबर बी सेज इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड एक्सेट्रा. ये इन्वेस्टमेंट तो है बट रिटर्न अगेन, मतलब आपकी पूरी इकोनॉमी में क्या कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक. नाउ स्टेटमेंट नंबर सी सेज लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म. ये भी एक इम्प्लीकेशन हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है. इसी वजह से आप अपना रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect. अब ये कह रहा है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा महंगाई इनमें से किस रीजंस की वजह से होगी. नाउ देयर आर सम क्वेश्चन जो मैंने इसलिए डाले हैं बिकॉज दे हैव बीन रिपीटेटिवली आस्क्ड बाय यूपीएससी ओवर द इयर्स. ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है. ए है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट. आप अगर पब्लिक डेट रीपे कर रहे हो तो क्या उससे इन्फ्लेशन होगा मार्केट में, हाँ या ना, बताइए. नहीं. बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, दैट्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, you cannot ignore it, right? C, borrowing from the banks to finance a budget deficit,
देखिए इन्फ्लेशन होगा इससे, ठीक है, थर्ड वाले स्टेटमेंट से ये जो कह रहा है कि बैंक से पैसा ले रही है सरकार टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, जो बजट का डेफिसिट है, इससे इन्फ्लेशन आएगा मार्केट में। बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो है मोस्ट इन्फ्लेशनरी, सबसे ज्यादा किससे होगा, ठीक है। अब देखिए क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, सबसे ज्यादा आपका इससे होगा। सबसे ज्यादा किससे होगा आपका, जब आप न्यू मनी क्रिएट करोगे मार्केट में। आपने बजट जो डेफिसिट था वो तो आपने भर दिया है, लेकिन वो जो नया पैसा क्रिएट हुआ है वो तो मार्केट में सर्कुलेशन में आ गया ना, उसने तो जो डिमांड सप्लाई का कर्व था वो डिस्टॉर्ट कर दिया है। सप्लाई उतनी है, डिमांड बढ़ गई है, राइट। तो स्टेटमेंट नंबर डी इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर सी कैन ऑल्सो भी करेक्ट, लेकिन यहाँ पर जो है मोस्ट इन्फ्लेशनरी दिया गया है। अगर स्टेटमेंट नंबर डी नहीं होता तो स्टेटमेंट नंबर सी होता, लेकिन यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है मोस्ट, ठीक है। तो जब आप क्या करेंगे, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो जो आपके कीवर्ड होते हैं आप उन्हें अंडरलाइन करेंगे और उस हिसाब से आंसर देंगे, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे पहले तो इस आंसर को आंसर करने से पहले, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, देखिए किसी भी इकोनॉमी में बैंक क्या करती है कि जो उस पर डिपॉजिट होते हैं उसका सर्टेन पार्ट वो लोन में दे देती है, ठीक है। और जो डिपॉजिट्स होते हैं वो उन्हें कैसे सर्विस करती है, उन लोन से जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट के थ्रू वो सर्विस करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या होता है कि जो लोन लोगों ने लिया वो दूसरे बैंक में जाके डिपॉजिट बन गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, वहां पे एक एसेट क्रिएट हो गया। अब ये पूरा मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए क्या होता है, सपोज करिए कि कोई भी बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, इसके पास डिपॉजिट है। लोन कहाँ से लेता है इंसान, बैंक से लेता है। बैंक पैसा कहाँ से लाता है, बैंक अपने डिपॉजिट्स का थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो आपको लोन पे दे देता है, ठीक है, लोन पे दे देता है, और जो उससे इंटरेस्ट मिलता है वो उससे अपने डिपॉजिट की सर्विसिंग करते रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई आया, किसी ने पैसे निकाले, ठीक है। अब क्या होता है कि वो जो लोन आपको मिला वो आपने किसी अकाउंट में लिया तो डबल मनी क्रिएट हुआ ना, मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ ना। यहाँ पे तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि आपको इस बैंक को प्रिंसिपल भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है, और वहां पे आपके पास इतना पैसा आ गया जो कि आप इन्वेस्ट करेंगे, घर खरीदेंगे या फिर आप घर बनाएंगे, हाउसिंग लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ, ठीक है। इधर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, इधर भी पैसा क्रिएट हो गया, उधर भी पैसा क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि वो जो पैसा है मोस्टली आप लोन क्यों लेते हैं, आप लोन इसलिए लेते हैं कि आप इन्वेस्ट करेंगे, आप घर लेंगे, ठीक है। आप पढ़ाई पे सबसे ज्यादा लोन क्या लिया जाता है, एजुकेशन लोन और आपका हाउसिंग लोन, ये सब, ठीक है। सो द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ए वो कह रहा है इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक, उससे मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं, उससे तो पैसा फ्रीज हो रहा है, ठीक है। बी इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक। अब बैंक ये कह रहा है इस पॉइंट के हिसाब से कि तुम्हारे पास जो लिक्विड मनी है, ठीक है, वो तुम अपने पास रखो, मतलब वो तुम्हें लेंड नहीं करना है मार्केट में। तो ऐसे तो नहीं होगा, ये जो है ये भी इकोनॉमी के बाहर हो गया, ये पैसा बैंक के पास है। अब सी इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, इसको देखते हैं एक बार। स्टेटमेंट नंबर डी इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देखिए पॉपुलेशन से कुछ नहीं होता, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी कोई बहुत इंक्लूसिव नहीं है, देयर इज हाई इनइक्वालिटी इन द कंट्री, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक कंट्री बहुत रिच है बट वहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत प्रिवेल करती है, जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, और मेजॉरिटी ऑफ मनी इज विद द हाई क्लास पीपल। तो सी स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Now, this question was asked in UPSC 2020. In India, the term public key infrastructure is used in the context of A. Digital security infrastructure, B. Food security infrastructure, C. Healthcare and education infrastructure, and D. Telecommunication and transportation infrastructure. ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है और आपको नहीं पता है कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, तो यूल 90% एंड अप मार्किंग बी और सी, जबकि इसका आंसर है डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज अगेन अ करंट अफेयर डिराइव्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस, एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो आपका 2018 में आया था, सब प्राइम 2008 में आया था, विच इज द सब प्राइम क्राइसिस। ठीक है, in another global financial crisis if another global financial crisis happens in the near future, which one of the following actions or policy are most likely to give some immunity to India? अब ये कह रहा है कि देखो, अगर दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो इन रीजंस में से, इन चीजों में से, इन पॉइंट्स में से कौन सी चीज है जो थोड़ी बहुत इम्यूनिटी इंडिया को दे पाएगी? सबसे पहला कीवर्ड है यहाँ पे ग्लोबल। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी विल बी अफेक्टेड। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 है नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म पैसा होता है, कोई भी हल्का सा भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बुरी रेटिंग्स दे दिया, कुछ भी हुई, तो सबसे पहला ये पैसा इकोनॉमी के बाहर जाता है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट अनरिलायबल फॉर्म ऑफ मनी, अनरिलायबल फॉर्म ऑफ कैपिटल, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन कैपिटल। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, ये हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ पॉलिसी आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया, थोड़ी बहुत इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये चीज तो बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं देगी, ये तो और भी डिजास्टर साबित होगी। ठीक है, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, अगर और फॉरेन बैंक्स खोल दिए तो क्या होगा? तो इकोनॉमी में क्या होगा कि आपका जो एक्सचेंज, जो फॉरेन आपके बैंक से फॉरेन करेंसी है उसकी जो है वो वॉल्यूम बढ़ेगी। 3 क्या होगा? मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है वो आपको इम्यूनिटी नहीं देगी। इस केस में पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज अ मच बेटर ऑप्शन। तो ये दोनों चीजें तो देखिए बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पे ये है नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स, तो ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप दूर से देख रहे हैं तो आपको तीनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे होंगे, बट दिस इज व्हाट इज नोन एज कि आप बहुत ही माइक्रो लेवल पे देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डिपेंडिंग, हम डिपेंड नहीं करेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पर। ये आपको थोड़ी बहुत इम्यूनिटी दे सकती है अगेंस्ट एनी ग्लोबल शॉक। एनी क्वेश्चन? बफर स्टॉक पे आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? वो मतलब व्हाट डू वी मीन बाय बफर स्टॉक? देखिए, बफर स्टॉक क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है मार्केट से प्रोक्यूर करती है फूड ग्रेन्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो फूड ग्रेन्स को आपको पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देती है, बट उसके बाद भी वो एक अमाउंट अपने पास बचाती है। वो क्यों बचाती है? इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, फॉर हेल्पिंग इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। जैसा कि आपके कोविड में क्या हुआ था कि खाने की कमी नहीं हुई थी, इंडिया ही ऐसी कंट्री थी जिसके पास इतनी पॉपुलेशन थी पर फिर भी खाने की कमी नहीं हुई और एक्सपोर्ट भी कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास बफर स्टॉक था। वी फेयर वेल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, वी प्रोड्यूस क्वाइट सफिशिएंटली फॉर आवरसेल्फ एंड टू एक्सपोर्ट। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज कि जब गवर्नमेंट
आपकी अनाज होता है वो उसे प्रोक्यूर करती है फार्मर्स से, फिर उसको पीडीएस के थ्रू लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देती है, उसके बाद भी वो एक अमाउंट बचा लेती है अपने पास। तो वो जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसको हम कहते हैं बफर स्टॉक, जो वेयर हाउस वगैरह में रखा जाता है। मेजर पार्ट ऑफ वेयर हाउस इन इंडिया इज यूज फॉर स्टोरिंग द बफर स्टॉक, ठीक है, और उसमें बहुत वेस्टेज भी इनकर होता है। नाउ लेट्स टेक one or two मेंस क्वेश्चन एंड हाउ टू अप्रोच देम, ठीक है। उसके बाद हम एक दो टॉपिक्स पे बात करेंगे एंड देन वील एंड द सेशन। ओके, नाउ ये क्वेश्चन जो है आपका PYQ है, यूपीएससी 2019 में आया था। अब हमें ये देखना है कि हमें इसे अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। Question number 1 says, what are the reformative steps taken by the government to make food grain distribution more effective? तो सबसे पहले तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन आंसर करने से पहले ना अपनी अप्रोच बना लीजिए, ठीक है, कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो हमें हाईलाइट करने हैं रिफॉर्मेटिव स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टू मेक फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन मोर इफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स हाईलाइट करने के बाद हम इसमें सजेस्टिव मेजर्स डाल देंगे 2-3, ठीक है। अब क्या है, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। इंडियन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ फूड सिक्योरिटी सिस्टम, और ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। अगर आपको ये डेटा याद रहेगा, क्योंकि ये सबको याद रहेगा, ये याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री कौन सी है, ये सबको याद रहेगा। इन 2022 फिस्कल ईयर 2022-2023 रुपीज 2.06 लाख करोड़ वाज एलोकेटेड फॉर फूड सब्सिडी। अगर आपको ये याद रहेगा तो इट विल बी वेल एंड गुड। ये डेटा हर साल बदलता है, ठीक है, ये बजट में आता है, ये हर साल बदलता है। हाउएवर इंडिया रैंक्स, देखो अब ये चीज देखिए कि इंडिया के पास अच्छा खासा प्रोडक्शन है, इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन इंडिया रैंक्स 107 आउट ऑफ 121 क्वालिफाइंग कंट्रीज in 2023 global hunger index, which means that there is development in the country but not inclusive development. Now this is what differentiate ये अगर include, अब ये डेटा जो है आपका यहाँ की जगह यहाँ के साथ साथ कि इंक्लूसिव ग्रोथ वाले पार्ट में भी आ सकता है कि despite faring well in the agriculture sector, India ranks 107 out of 121 in the 2023 Global Hunger Index. Now, steps taken by the government. National Food Security Act. It was introduced in 2023. आप इसके बारे में, अब यहाँ पे आपको रिफॉर्मेटिव स्टेप्स देने हैं बाय द गवर्नमेंट, ये आपको याद होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे अभी आंसर क्या लिखना है आंसर में ये नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करना है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है ये, और ये सीधा का सीधा आपका सिलेबस से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया कि ओवर 80 करोड़ NFSA beneficiaries availing benefits of PDS through 5.45 lakh fair price shops in India, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर एनरिचमेंट। आपने करंट अफेयर पढ़ा दिया, आपने करंट अफेयर बता दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। सामने वाले को पता है कि आपको डेटा पता है, सिंपल हुआ, उसने आपको मार्क्स दे दिए। बट इतना डेटा याद रखना इज अ बिग टास्क, आई अंडरस्टैंड। तो कोशिश करिए कि आप जो भी पॉइंटर्स बनाएंगे अपने सिलेबस के, हर पॉइंटर में आप 2 से 3 डेटा याद रखें कि एटलीस्ट आप एक तो जाके एग्जाम में उतार ही दें कि इसका हमें एक जो है वो तो पता है। ये रैंकिंग वेस्टर्न एजेंसीज करती हैं, हम तो सभी को फूड दिया, हम हंगर इंडेक्स में कैसे, वो आपकी बात सही है, लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बहुत ऐसे गरीब हैं जो आज भी बिना खाने के सोते हैं, ठीक है, बट ये बात सच है दैट टू सम एक्सटेंट इट्स वेस्टर्न हिपोक्रेसी एज वेल, वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। बट हम आंसर में ना ही लिखें, कोई पॉलिटिकल स्टैंड ना लें, ठीक है, तो बेटर रहेगा। लेट्स टेक थिंग ऑन द फेस वैल्यू। ओके, नाउ आधार इंटीग्रेशन। आधार इंटीग्रेशन से क्या है कि डुप्लीकेशन रुक गया है, ठीक है, कि एक ही इंसान 2 जगह से या एक ही जगह से 2 बार राशन नहीं ले सकता है, ठीक है, थ्रू ई वेरिफिकेशन ऑफ रेशन कार्ड। अब यहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का डेटा कोट कर दिया, इन्होंने 10 लाख बोगस बेनिफिशरीज जो हैं वो हटाए हैं, जिसने अराउंड रुपीज
30 करोड़ बचाया है। तो आप ये लगा लीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश का 230 करोड़ रुपए जो थे वो बेकार ही जाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बोगस बेनिफिशरीज हैं वो 2-3 बार अपना राशन ले लेते हैं और जिन्हें मिलना है उन्हें मिलना नहीं है। वन नेशन वन रेशन कार्ड, दिस इज वन ऑफ द foremost and important scheme. Beneficiary can access food grains from any fair price shop across the country, benefiting migrant workers and their families. Example, through ONORC, a migrant worker who moves from Bihar to Karnataka can still buy subsidized food grain from a fair price shop in Karnataka using his Bihar ration card. Okay. नाउ ये सारे देखिए पॉइंट्स हैं, आप चाहेंगे तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी, बट ये सब आंसर लिखना बाद में सिखाएंगे जब हम एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा जब हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज कर लेंगे, जब हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे अपने करंट अफेयर्स और अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ, थोड़ा सा हम सीख लेंगे उन चीज़ों को। ये सिर्फ मैं बता रही थी कि इट विल बी मच बेटर कि आप हर स्टैटिक पॉइंट को एक recent example के साथ कपल करेंगे, so your chance of selection it increases a lot। और ये आप कब करते हैं, या आप कब करते हैं जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। इसलिए इकोनॉमी के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको अपनी एक खुद की हैंड आउट बनानी है, हर एक पेज पे इकोनॉमी के सिलेबस का एक कीवर्ड लिखना है और उसके नीचे का जितना भी डेटा है और उसके जितने भी सब पॉइंट्स हैं वो डालने हैं। मैक्सिमम आपको, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई एम स्पीकिंग, कि 100 पेजों में आपका पूरा इकोनॉमी कवर हो जाएगा इंक्लूडिंग योर डेटा। ठीक है, ये जो स्टैटिक पॉइंट है ये याद रहते हैं और जितने यहाँ पे उतने मेंशन नहीं करने होते हैं, 4-5 से ज्यादा नहीं लिखे जाते हैं ये। ठीक है, द गवर्नमेंट रिफॉर्म इनिशिएटिव आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, आप कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इतना बहुत है। उसके बाद देखिए, examine the role of supermarkets. Now this is relatively a tough question. This was relatively a tough question. And it was asked in UPSC 2018। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यूपीएससी सिलेबस के बाहर गया है। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो आपके सिलेबस में है। तो एग्जामिन द रोल ऑफ सुपरमार्केट्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फूड आइटम्स। हाउ डू दे एलिमिनेट द नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज, मतलब कि मिडिलमैन को कैसे आपका बाईपास करते हैं आपके सुपरमार्केट हो गए, जैसे आपके रिलायंस सुपरमार्केट हो गया, बिग बाजार हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि सुपरमार्केट जो है क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन कर दीजिए जो कीवर्ड होता है। कीवर्ड है सुपरमार्केट। अ सुपरमार्केट इज अ सेल्फ सर्विस स्टोर विद सेक्शंस ऑफरिंग अ वाइड सेक्शन ऑफ फूड, ड्रिंक एंड होम आइटम्स। It's more diverse than old grocery stores, featuring fresh meat, fruit, dairy, baked goods, and various non-food items. Notably, supermarkets lack salesperson, and this is how they eliminate the middleman. So, one of the key benefit of supermarket is that it eliminates the role of middlemen, which are known to be exploitative. अब देखिए, एक भी कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, उसमें आप जितने लोग जोड़ेंगे उतने लोग का कमीशन बढ़ जाता है, तो जो एंड गुड होता है वो उतना ही महंगा होता है। तो बेटर है कि फार्मर से जो सुपरमार्केट है वो सीधे प्रोक्यूर करते हैं, मिडिल मैन का कोई रोल ही नहीं रखते, तो एक्सप्लॉयटेशन से बचते हैं। एंड गुड जो होता है, ठीक है, उस पर वो खुद कितना पैसा चढ़ा दें, लेकिन जो उनके पास फाइनल प्रोडक्ट आता है वो सस्ता आता है। पॉइंट्स दे दीजिए, वेज इन विच markets eliminate intermediaries। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका डायरेक्ट सोर्सिंग, सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, थर्ड है अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, फोर्थ है प्राइवेट लेबल ब्रांड्स एंड फिफ्थ है आपका कलेक्शन सेंटर्स। अगर ऐसे में से आपको 3 भी याद रह गए तो भी बहुत है सजेस्टिव मेजर्स में, ठीक है, फिर आप इसे कंक्लूड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएसएमई पे, एमएसपी पे, विच इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा एमएसपी क्या होता है। एंड हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू द फार्मर्स फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप। अब एमएसपी क्यों, मतलब एमएसपी क्यों देती है गवर्नमेंट, जिससे कि फार्मर्स को
के जो लॉसेस हैं वो एक गिवन सीजन में मिनिमाइज हो सके. ठीक है. MSP is a rate at which government buys grains from the farmers. It was introduced in the 1960. It was introduced before the Green Revolution. ठीक है. To boost food production. However, it has faced inefficiencies and debates continuing on whether legally back MSP due to potential benefits and negative impacts. अब देखिए जिस चीज़ का फायदा है उस चीज़ का नुकसान भी होगा. ठीक है. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं. जो फार्मर बिल था उसका भी सबसे बड़ा प्रोटेस्ट यही था कि फार्मर्स को ये लगा था कि आपका जो MSP है वो हटाया जा रहा है. अब सबसे पहले आप पॉइंट कर देंगे इनएफिशिएंसीज प्लेगिंग MSP इन इंडिया. ठीक है. उसके बाद आप बता देंगे बेनिफिट्स ऑफ मैंडेटरी MSP. फिर आप बता देंगे नेगेटिव इश्यूज कॉज्ड बाय MSP, क्योंकि ये आपको एनालाइज करने के लिए बोल रहा है. तो जब भी देखिए क्वेश्चन आपको एनालाइज करने के लिए बोले, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोले, ठीक है, तो आप आर्ग्यू करने के लिए बोले, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रखने हैं किसी भी पॉइंट के. ठीक है. SDG याद रख लीजिएगा इसी बात पे. SDG 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 इट इज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड SDG 2 इज फॉर फूड सिक्योरिटी. ऑलराइट. नाउ okay, now we'll be talking about national logistic policy for 5 minutes and so, and then we'll wrap up. ठीक है. तो आपकी जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, एक सेकेंड. ओके, डू यू नो द रीजन व्हाई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड? जल्दी जल्दी बताइए, देन वील रैप अप द सेशन. To reduce round time. Time and fuel. Okay. तो चलिए बात करते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर की. इंडिया में, इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो हाईली इनएफिशिएंट है. ठीक है. और ये चीज़ नज़र में कब आई? ये आई कोविड के दौरान. कोविड के वक्त क्या हुआ था कि जब कोविड की वेव हिट करी, इनिशियली तो सब कुछ बंद था, बट देन इंडिया फेयर्ड वेल इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर. ठीक है. किट भी बन गई थी, वैक्सीन्स भी बन गई थी, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई थी वो आई थी ट्रांसपोर्टेशन में. ठीक है. तब लॉजिस्टिक सेक्टर की इनएफिशिएंसी जो है वो बहुत ही वाइडली हाईलाइट हुई. ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग ऑन इट सिंस 2016-17. 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आपका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अलग क्रिएट कर दिया गया था. ठीक है. एंड दे हैव बीन टॉक्स अबाउट creating a different department and ministry for logistics sector. ठीक है. लेकिन ये इनएफिशिएंसी जो थी ये काफी हाईलाइट हो गई थी आपके कोविड के दौरान. ऑलराइट. नाउ ये सबसे पहले तो लॉजिस्टिक जो है, लॉजिस्टिक का पार्ट क्या क्या है? सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंड गुड्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी एक्वायरिंग, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, सप्लाई चेन एंड एक्सपोर्ट मैकेनिज्म. ठीक है. ये सब जो है ये आपके लॉजिस्टिक सेक्टर का पार्ट है. इट इज मच मोर देन व्हाट वी थिंक. अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारी जीडीपी का जो 14% हिस्सा है वो हमें लॉजिस्टिक्स को अलॉट करना पड़ता है, विच इज वेरी हाई प्राइस व्हेन कंपेयर्ड विद द BRICS nation. BRICS is, एक सेकेंड, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है. ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं उनमें आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है
to their GDP, it's just 11%, despite few of them being low faring than the Indian economy. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को 14% GDP पड़ता है लॉजिस्टिक कॉस्ट पे, which is very high as compared to the BRICS economy as well as to the highly developed economies which is US, Singapore, South Korea. वहाँ पे सिर्फ 8% पड़ता है. ठीक है, अब क्या है कि लॉजिस्टिक सेक्टर में सबसे पहले आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन. इंडिया में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इंडिया में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एविएशन, ठीक है, पोर्ट्स. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब हम एनालिसिस देखते हैं कि इतने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा सेक्टर था, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो आता है आपका वो रेलवे सेक्टर आता है. रेलवे सेक्टर जो है सबसे कम पैसा लगाता है आपका किसी भी गुड को ट्रांसफर करने में. उसके बाद आता है आपका इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, उसके बाद आता है आपका रोड सेक्टर. अब क्या है, 64.5% of the good, around 65% of the goods in India are transported through roadways and 25% are transported through the railways. Inland waterways तो डबल डिजिट में अभी पहुंचा ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे लॉजिस्टिक्स बहुत ही इनएफिशिएंट है. रोडवेज के साथ दिक्कत क्या है? रोडवेज के साथ ये दिक्कत है, सबसे पहली दिक्कत है कि 99% उसमें जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं. 85% के लोग वो हैं जिनके पास 20 से कम ट्रक्स हैं. तो इसी वजह से ये जो आपका लॉजिस्टिक सेक्टर का पूरा मैकेनिज्म है ना, ये स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाता है. ठीक है, इसलिए आपकी जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी थी वो इंट्रोड्यूस करी गई थी. ऑलराइट, नाउ वील सी कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है और इसके आपके जो जो गोल्स हैं वो क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं. ठीक है, द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एम्स टू बूस्ट बिजनेसेस, improve livability and cut logistic cost from 13 to 14% to par with other developed nations. The reduced cost will enhance competitiveness in local and global market and spur efficiency, value addition and enterprise across sector. अब इसको आप और ज़्यादा वैल्यू एनरिचमेंट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे 13 to 14% to par with other developed nation. Developed nations के आप नाम दे दीजिए, USA such as USA, South Korea and Singapore, where GDP where only 8% of the where logistic sector costs only 8% of the GDP. Okay, now with this point I would like to tell you कि India aims to streamline the logistic sector and cut the cost to 8% of the GDP by 2030. Okay, 8% of GDP by 2030 to the logistic sector. Now, सबसे पहला है challenges faced by the Indian logistic sector. सबसे पहला है elevated logistic expenses. Logistic के expenses बहुत ज़्यादा हैं. अब क्या होता है कि logistic के expenses जब goods में add होते हैं, normal सी चीज़ है कि जो transportation cost लगा, distribution cost लगा, handling cost लगा, वो final product में आपका add होगा. तो जब ऐसा होता है तो फाइनल प्रोडक्ट का जो रेट है वो ऑलरेडी बहुत बढ़ जाता है. ठीक है, तो सबसे पहला है एलिवेटेड लॉजिस्टिक एक्सपेंस. इंडिया एक्सपीरियंसेस अ नोटेबली एलिवेटेड कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक अकाउंटिंग फॉर 13 to 40% ऑफ इट्स GDP, whereas other major economies allocate only 8 to 9% of the GDP for the same purpose. यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया कि लॉजिस्टिक का मेन खर्चा आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन में, विच constitute about 53% of it, followed by warehousing which is at 12% of it, and material handling which is 10%. Now second is unfavorable logistic performance index. इंडिया की रैंक 2018 में थी 44 in logistic performance index which is released by the World Bank, और 2023 के लेटेस्ट ग्लोबल लॉजिस्टिक इंडेक्स में थी ये 38th रैंक पे, जबकि इंडिया का इमीडिएट नेबर चाइना उसकी रैंक है 26th 2018 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में. ठीक है, नाउ इंडिया ऑल्सो एम्स टू रीच इन टॉप 25 कंट्रीज बाय द एंड ऑफ 2023
इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। लिमिटेड कॉम्पिटिटिवनेस। अब देखिए सीधी बात बताइए, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको 30 रुपए में मिल रहा है और सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको 20 रुपए में मिल रहा है, तो आप 20 रुपए वाला लोगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा पैसा खर्च करने में तो किसी को मज़ा नहीं आता, ठीक है। अब जब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ते हैं तो इंडियन प्रोडक्ट्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो हो जाती है कम। सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो कम हुई तो उसके बाद क्या होगा कि कॉम्पिटिटिवनेस गैप आ जाता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू जो है, उसकी डिमांड जो है वो हो जाती है कम, ठीक है। एक्सेसिव रिलायंस ऑन रोड, ये हमने डिस्कस कर लिया। 64.5% ऑफ द गुड्स इन इंडिया आर ट्रांसपोर्टेड बाय रोड्स, अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द ग्लोबल एवरेज ऑफ 25%। हियर आई वुड लाइक टू हाईलाइट, इंडिया में रेलवेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 25% और रोडवेज का कंट्रीब्यूशन है लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में 65%, जबकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेल परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में ये उल्टा है। वहाँ पे रेलवेज कॉन्स्टिट्यूट फॉर द 65% ऑफ द लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन and roadways they constitute 25%. अगला है governance challenge. The logistics sector in India is characterized by involvement of multitude of entities. This intricate framework hampers the ease of conducting business. बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, क्यों? क्योंकि इतनी सारी जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इतनी सारी एंटाइटीज इन्वॉल्व हैं, 20 गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद 30 से 40 आपकी पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट बाहर भेजने के लिए, अंदर लाने के लिए सेवरल क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। इतनी एजेंसीज से लेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो डिले होता है आपका पूरा प्रोसेस। फ्रेगमेंटेड नेटवर्क. The logistic landscape in India often operates independently without seamless coordination. अगला है कि कोई coordination नहीं है, ये मिनिस्ट्री अलग वर्क कर रही है, वो मिनिस्ट्री अलग वर्क कर रही है, वो मिनिस्ट्री अलग वर्क कर रही है, ठीक है। क्लियरेंसेस लेने में टाइम लग रहा है। रेगुलेटरी एंड टैक्सेशन कॉम्प्लेक्सिटी वो अलग रही, ठीक है। अब वेज इन विच नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी विल एड्रेस द चैलेंजेस। अब ये है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्रोग्राम, IDS, ईज ऑफ लॉजिस्टिक, सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप। ये आपके 4 कंपोनेंट्स हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के, ठीक है। इसमें से आपका ULIP जो है वो 3 टियर स्ट्रक्चर है, और ये क्या करेगा कि ये सारी की सारी डिजिटल सर्विसेज को एक जगह पे लाके इकट्ठा कर देगा टू फ्री द होस्ट फ्रॉम अ लॉन्ग एंड कम्बरसम प्रोसेस। मतलब कि ये प्रोसेस को एक ही इंटरफेस पे लाके एफिशिएंट बना देगा, ठीक है। कि अगर किसी मिनिस्ट्री को एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट देखनी है तो वो इस इंटरफेस पे देख सकता है। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। अब इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम में क्या है कि 30 डिफरेंट एजेंसीज फ्रॉम 7 डिपार्टमेंट्स, ठीक है, इनका डेटा इंटीग्रेट कर दिया गया है और इसे रियल टाइम पे मॉनिटर करा जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। थर्ड है ईज ऑफ लॉजिस्टिक, ई-लॉग्स। ई-लॉग्स जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए है। अगला है आपका सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप। सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप का बस ये काम है कि वो देखेगा डेवलपमेंट रिलेटेड टू द चेंजेस विच आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और जो चैलेंजेस हैं, जो बॉटलनेक है, ओके। अगला है स्टेट एंगेजमेंट। स्टेट फिस्कल जो आपका कोऑर्डिनेशन है, स्टेट कोऑर्डिनेशन है, उसका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। एक्सिम लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक, to address infrastructure and procedural gap in connectivity and create an efficient and reliable logistic network both domestically as well as internationally, ठीक है। अब NLP जो है इंडिया के जो प्रीवियस प्रोग्राम्स हैं जो आपके लॉजिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए डेवलप करे गए हैं, ठीक है, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे कि आपका गति शक्ति प्रोग्राम है। गति शक्ति प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करा था 2021 में टू इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। इट मेजरली डील्स विद द रोडवेज एंड रेलवे प्रोजेक्ट अक्रॉस द नेशन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। सेकेंड है आपका सागरमाला। इट सागरमाला इज रिलेटेड टू द कोस्ट लाइन एंड वाटरवेज एंड इट एम्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू रीच देयर टारगेट्स। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है इसके अंदर भी, बट इसका मेजर पार्ट ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उसे हम एफिशिएंटली यूज में कैसे ला सकें। थर्ड इज द भारतमाला। इट अगेंस्ट डील्स विद द रोड ट्रैफिक सर्कुलेशन अक्रॉस द नेशन, नेशनल हाईवेज।
नाउ कंक्लूजन में हम ये हाईलाइट कर देंगे कि इफ इंडिया नीड्स टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024-2025, this connectivity and robust infrastructure becomes crucial point, and the NLP provide required boost for the sector to their effect. NLP will thus promote the facilitation of a unified regulatory environment and institutional framework. All right. अब हम एक बार सागरमाला प्रोजेक्ट का एम ले लेते हैं, उसके बाद वील रैप अप द सेशन. सागरमाला प्रोजेक्ट इट डील्स विद, आपको पता ही है, इट डील्स विद द पोर्ट एंड कोस्ट लाइन. ओके. विजन ऑफ सागरमाला प्रोग्राम इज टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर एग्जिम. एग्जिम हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखिए एग्जिम क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉजिस्टिक, विच इज टू एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसीजरल गैप. ठीक है. एंड डोमेस्टिक ट्रेड विद मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. अब this include reducing the cost of transporting domestic cargo by optimizing multimodal mix. मतलब कि जितने भी आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं सबको ये एक इंटीग्रेटेड मैनर में लाके उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डोमेस्टिक कार्गो को डिक्रीज करेगा. लोअरिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ बल्क कमोडिटीज बाय लोकेटिंग फ्यूचर इंडस्ट्रीज कैपेसिटी नियर द कोस्ट. अब इसका ये कहना है कि जिन भी कमोडिटीज़, जो भी बल्क कमोडिटीज़ हैं और जो एक्सपोर्ट में ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है, आप उनको जो है उसके पास ही लगाइए ना. ठीक है. तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है हिंटरलैंड से आपका कोस्ट तक आने का खर्चा वो बचेगा. इंप्रूविंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बाय डेवलपिंग पोर्ट प्रॉक्सिमेट डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर. पोर्ट के पास ही मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स खोल दिए जाएंगे जैसे कि सिडकुल. ऑप्टिमाइजिंग टाइम कॉस्ट ऑफ एक्सिम कंटेनर एंड मूवमेंट. अब कंपोनेंट्स क्या है सागरमाला प्रोग्राम के, ब्रॉडली देख लेते हैं. पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट जहाँ भी जरूरत है. पोर्ट की एक दूसरे से कनेक्टिविटी. थर्ड है पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. फोर्थ है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट. और लास्ट में आपका कोस्ट शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन. ये आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं सागरमाला प्रोजेक्ट के. नाउ विद दिस आई वुड लाइक टू रैप अप द सेशन एंड यू विल रिसीव अ हैंडबुक. और अगर किसी को ज़रूरत हो मीन्स आंसर राइटिंग उसकी questions ki, so they can let us know. Thank you so much for attending the session. We'll meet in the next one.